That was back in 2008. इंटरनेट नहीं था उतना ज़्यादा जितना आज है. You don't have that exposure to my masters and come back. I never had a plan to live in New Zealand or live abroad as such. Just to give a perspective, हमारे side ज़्यादा बाहर जाने का कीड़ा नहीं है. जितना कीड़ा आप साउथ में देखोगे या फिर पंजाब में देखोगे, हमारे साइड उतना कीड़ा है नहीं बाहर जाने का. तो कोई गाइड करने वाला नहीं था कि तुम्हारे पास इतनी सेविंग्स है तो बैंक में क्यों पड़ी है. तुम 13% इंटरेस्ट दे रहे हो अपने लोन पे, तो तुम अपने बैंक में क्यों रखे हो ये चीज. इसको अगर तुम्हारे पास 2000 भी पड़े हैं तो 1 लाख तो वैसे ही कम हो गया ना इंडिया में. तो वो चीज मैं नहीं करा. तो मेरे को पता नहीं था, वो मेरे को अकाउंट में देख के बहुत खुश होता था. Hi, hello everyone. This is Chakit from VSC Global Education. Today we are here with Mr. Abhishek Gupta. He is an engineer here based in Auckland, and the reason why I have got him on this podcast is so that he can share his years of journey in New Zealand and how he came here, what kind of jobs he did, what kind of studies he did, what kind of life he's living here in New Zealand. So you will get to know a lot of things which will help you make better decisions in your life. So watch this video till the end so that you get the complete information. So welcome, Abhishek. Hi Jackie. How's it going? Yeah, good. Good. Thanks for having me. Yeah. How's your journey has been? So where are you from in India? What all studies you did from India? How did you decide that you want to go abroad for your higher education? And then why did you select New Zealand? So I'm asking all these questions Yeah. so that we can Basically background, Yeah. how it happened, right? so that way a lot of people will get this information that how they can make those better decisions which Yeah. can help them shape up their career. So over to you. Sure. I'm from Ranchi, Okay. Jharkhand. अगर लोगों को नहीं पता होगा तो धोनी. Yeah, he's from there. I did my schooling from there until 12th. I was there, and then I did my engineering from Chennai. वहाँ पे decide हुआ था कि I'll go abroad for my masters. Not necessarily I'll live outside. It was basically just I'll go do masters and come back, because obviously when you're young you don't know what you want to do. Correct. Right? You Yeah. just follow what other people say or What they are doing. what they are doing. You know, that was back in 2007-8. इंटरनेट नहीं था उतना ज़्यादा जितना आज है. You don't have that exposure. मतलब you didn't have that exposure. जो तुम देखते थे वो जब मैं जैसे जॉब ज्वाइन किया, जो लोग ऑन साइट होते थे उनसे तुम्हें लगता था कि अरे यार क्या लाइफ है, और यू नो दिस एंड दैट. या समटाइम्स व्हेन यू लुक एट योर सीनियर्स हु हैव डन मास्टर्स एंड दे हैव कम बैक, और you look at your managers and you see, come to know that okay, what they have done to be a manager, and then you think that okay, they did engineering and then they did MBA or whatever masters, and then they became managers. So obviously, like you know, you learn from what you see around you. Yep. और उस टाइम पे वो गाइडेंस उतनी ज्यादा नहीं थी, obviously, because I come from a business family, right? हमारे अराउंड उतने आईटी नहीं थे, और उस समय आईटी बहुत नया था, to be honest. कंप्यूटर साइंस था, लेकिन मेरी कॉलेज में उस टाइम पे पहली बार आईटी एज अ सब्जेक्ट था. Okay. So- So you were first from that batch. Yeah, Yeah. in my college. Yeah. If I'm not wrong, yeah, maybe, लेकिन बहुत नया था. Maybe एक आध साल और चला बहुत होगा, टाइम हो maybe. गया. हाँ, तो it's- हाँ. It's okay. Yeah. हाँ, तो दैट वाज आल्सो अ डिसीजन कि आईटी क्या है और कंप्यूटर साइंस क्या है. तो आई एम कमिंग फ्रॉम दैट point of time, you know, because I finished my engineering in 2007. I got my campus placement at Patni Computers. And while I was at Patni Computers, then I decided that okay, I want to go outside and do my masters and come back. I never had a plan to live in New Zealand or live abroad as such. क्योंकि just to give a perspective, हमारे side ज़्यादा बाहर जाने का कीड़ा नहीं है. जितना कीड़ा आप साउथ में देखोगे या फिर पंजाब में देखोगे, हमारे साइड उतना कीड़ा है नहीं बाहर जाने का. तो आई नेवर हैड दैट थिंग कि हाँ मेरे को बाहर जाके सेटल होना है और ये सब डॉलर्स में कमाना है टाइप्स. मेरा बस ये था कि हाँ आगे बढ़ना है तो हाँ मैं मास्टर्स करके वापस आऊँगा. एंड तो एग्जैक्टली 2 साल किसी ने मेरे को सजेस्ट करा था कि बाहर ऐसे मत जा, कि सिर्फ इंजीनियरिंग कराओ और बाहर चले गए. थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेकर जा. अगर तू MBA करने जा रहा है या मास्टर्स करने जा रहा है, पहले कॉर्पोरेट सीखो क्या है, what is corporate life, what people do, what project is, you know, कैसे काम होता है. When you have that understanding and then you come for a master's, that will give you a reason why you are studying, you know. Yep. अगर तुम
नीचे के लेवल में ही नहीं देखे हो हम्म कुछ कि कैसे काम होता है, कैसे हम्म प्रोजेक्ट होता है, कैसे ऑफिस जाना होता है, मैनेजर्स के साथ कैसे काम करना होता है, अपने कॉलीग्स के साथ कैसे काम करना होता है. हम्म हाउ विल यू बिकम अ मैनेजर, या राइट? जब तुम्हें प्रोजेक्ट का ही नहीं पता हम्म है तो वो यू जस्ट jump the gun हाँ in your career. That's what my perspective is. हम्म People have done things and they have succeeded in their life, so I don't want to comment on that. It's my perspective of life. या ऑब्वियसली Get your experience and then जब तुम्हारे पास पढ़ाई करने में और जॉब करने में बहुत डिफरेंस है. करेक्ट इंजीनियरिंग में मेरे को लगता है तुम 20% सीखते हो, 80% जो सीखते हो वो तुम ऑन द जॉब ऑन द जॉब सीखते हो. इवन फर्स्ट 3 months ऑफ ट्रेनिंग जो देते हैं इंडिया में हम्म कंपनीज में, you learn way more than what you have studied in the whole engineering of 4 years, right? ओके तो हाँ, वो important था. I took that suggestion which helped me a lot, and then I came to then I did GMAT. उतना बढ़िया स्कोर नहीं आया था with studies, with job, it's hard. I didn't want to waste time as well preparing for GMAT as well. लेकिन इंडिया में जॉब कैसे होता है? यू आर इन द ऑफिस फ्रॉम 8:30 or 9 o'clock and then you come home at 10 and then you don't get time to study. करेक्ट So anyway, I managed to at least do that. And then I started applying for colleges again without any guidance. जितना मेरे को पता था, I thought Canada जाना चाहिए. हाँ कनाडा में एक ही इनटेक होता है, that is सितंबर फॉल इनटेक September. Yeah, and I took my GMAT around that time, October, November. So I missed that I missed it. उस समय मेरे को लगा कि हाँ चलो, अरे यार पूरा साल अब वेट करना पड़ेगा. हाँ Then I researched a bit more. Obviously US was an option, but that was too expensive, above my budget. तो इसलिए मेरे को पहले से पता था कि मैं US नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास 50 लाख नहीं थे उस टाइम पे. अब ज़्यादा लगते होंगे मे भी. जब मैं देख रहा था 40 से 50 लाख उस टाइम पे भी लगते थे. तो that was not an option. Then came to Southern Hemisphere where I got invites from colleges in Australia as well as the New Zealand. ऑस्ट्रेलिया में फिर भी 10 लाख ज़्यादा लग रहा था न्यूजीलैंड से. I'll be very honest with you. New Zealand was my option only because it was a cheaper option at that time. ओके I think इंडिया में न्यूजीलैंड को लोगों को पता नहीं था उतना. जो क्रिकेट नहीं देखते थे उनको तो पता भी नहीं था. हाँ बिल्कुल नहीं पता ठीक है, न्यूजीलैंड तभी पता था लोगों को कि हाँ क्रिकेट टीम है उसकी. बहुत मेरे फ्रेंड्स पूछे भी, पूरी दुनिया छोड़ के तो न्यूजीलैंड क्यों जा रहा है? उन्हें क्या पता, जो भी है रिसर्च है कि हाँ ठीक है. और एनीवे मेरे को रहना नहीं था. सो आई डिडंट केयर अबाउट वहाँ लाइफ क्या है, वेदर क्या है, ये है वो है, जो मेरे को कुछ पता भी नहीं था. तो आई जस्ट थॉट अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है. आई गॉट कॉल्स फ्रॉम विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, मैसी, ओटागो. एंड ऑस्ट्रेलिया में मेरे को मिला था यूनिवर्सिटी ऑफ वोलंगोंग और कुछ थे जी. तो देन आई चोज टू कम टू न्यूजीलैंड. कि ठीक है, बाहर की डिग्री ही चाहिए मेरे को और अच्छा कॉलेज है. आई सॉ द रिव्यूज. और उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि चैट जीपीटी ऑब्वियसली या फिर कहीं से भी पूछ लो और इतना रिसर्च कर लो. एक वेबसाइट था जहाँ पे तुम पढ़ लो. वेबसाइट में सब कुछ अच्छा ही रहता था हर कॉलेज के बारे में. बिल्कुल. और या तो फिर फेसबुक में नई नई कम्युनिटी शुरू हुई थी. तो एक आध कम्युनिटी ज्वाइन किया, उसमें पूछा. अब इंडिया में रहेगा तो तुम्हें नहीं पता होता कि किस लेवल का बंदा, उसका एक्सपर्टीज क्या है. फेसबुक से प्रोफाइल से तो नहीं पता चलता ना कि वो कहाँ काम कर रहा है, आईटी का एक्सपर्टीज भी है कि नहीं है. लेकिन एक्सपर्टीज सब देते हैं अपना, राइट. और लिंक्डइन इतना पॉपुलर नहीं था. हाँ, लिंक्डइन भी उतना पॉपुलर नहीं था. तो बहुत लिमिटेड रिसोर्स था. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि उस इंडियंस लिविंग इन न्यूजीलैंड में भी अगर तुम पूछोगे तो वहां पे 20 लोग तो बोलेंगे मत आओ. जो सक्सेसफुल होंगे वो बोलेंगे आओ. जो सक्सेसफुल नहीं होंगे वो बोलेंगे मत आओ. बिल्कुल, है ना. अगेन इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग. या बट अगेन आई चोज कि चलो ठीक यू है. हैड टू कम. सो हाँ, इट वाज चलो माय आगे डेस्टिनी. बढ़ते तो आ गया, पढ़ाई करा. तो दैट्स हाउ आई पढ़ाई एंडेड अप इन करी. न्यूजीलैंड. व्हाट डिड यू I did स्टडी? my master's in information management, ओके. which I can come to it later. I didn't finish it. क्योंकि that was another eye opener for me. मास्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन Master's in information management. मैनेजमेंट. That was called MIM जी. from Victoria University. 1.5 साल का कोर्स था. But when I came here, So you did masters of. I didn't do that. Okay, you didn't do that. Nah. Okay. So now let's get into this. Why did you not do that? Because I'll tell you a backdrop. Yeah. Right now,
the rules. So this is for you as well. I mean, I did that. I didn't finish it. Yeah. So Yeah. just to give you guys a backdrop, right now the immigration policies are not as they were in 2007, 8, 9, 10 because they are the things which keep on changing. So policies are not like which remains the same. So probably that might be the reason that you got the liberty of not completing the masters and finishing off with postgraduate diploma, because right now if you will come with postgraduate diploma you get shorter period of post study work visa compared to a master's. So if you'll do a postgraduate diploma now, so it's 1 year of postgraduate diploma, 1 year of post study work visa. But if you do masters, you get 3 years of post study work visa. Just to give you an Okay. backdrop on, Right. because people might think that okay, we'll get the admission in masters, Yeah. and yeah. then we can No, drop things in have changed a between. lot. I know. Yeah, yeah. It's not thoda sa easy tha. Yeah. It was still not as easy as it was in early 2000s. Yeah. जहाँ पे आपको न्यूजीलैंड आना बहुत इजी था और रेसिडेंसी लेना बहुत इजी था. हाँ. आईटी के लिए नहीं था उस टाइम पे भी. अगर इफ यू आर, क्योंकि मेरा क्या हुआ था उस समय पॉइंट सिस्टम चलता था. हाँ, करेक्ट. उस टाइम पे Right? पॉइंट सिस्टम अब था. हाँ. क्या चलता है मेरे को नहीं पता. अभी भी है, बट बिफोर इट More देयर वाज पॉइंट्स फॉर around it. एज, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, हाँ. लोकेशन, स्पाउस, आईएलटीएस. सो बहुत डिफरेंट क्राइटेरियाज थे. हाँ. आज की डेट में वो नहीं है. हाँ. सो आज की डेट में इट्स ओनली 6 पॉइंट पीआर सिस्टम. दे हैव ग्रीन लिस्ट एंड स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी. सो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन इफ यू हैव Skill migrant category was still there. या, Time. बट द पॉइंट सिस्टम इज डिफरेंट. हाँ. हाँ. वहां पे था क्या कि मेरे पॉइंट्स हो रहे थे. मे बी उस टाइम पे मेरे को नहीं किया करना होता. I'll start from the reason why I did या, it, right? या, Then it दैट विल मेक सेंस. या, करेक्ट. तो जैसे इंडिया में क्या होता है या एशिया में क्या होता है, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, इज वर्क एक्सपीरियंस की उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है. अगेन आई कैन बी रॉन्ग इन दैट, या. लेकिन दैट्स व्हाट आई फेल्ट बिकॉज आई हैव फ्रेंड्स हु डिड engineering, didn't do any job after that. They straight away went to do masters either in Singapore or wherever and came back and got a job as a manager, स्ट्रेट अवे. some manager. या. वो एशिया में ही होता है, बाहर नहीं होता है. यहाँ पे जब मैं आया और मैं पहली बार जब मास्टर्स करने क्लास में घुसा, एंड देन व्हेन आई एंटर्ड द क्लास, वहाँ पे सारे जस्ट by looking, मेरे को लगा कि at least the average age was at least 40 years of age. 40. Yeah, 35 to 40 years of Okay. age. ओके. जब मेरी बातें हुई लोगों से, तो एक मैं था और 2 बंदे थे भोपाल के, वो मुझे मिले थे. तो हम तीनों गए थे और हम तीनों सबसे यंग थे पूरे क्लास में. नाइस. जब लोगों से बातें हुई, हाँ. तो किसी के पास 15 साल का मैनेजरियल एक्सपीरियंस था, किसी के पास 10 साल का मैनेजर एक्सपीरियंस था. तो वहां पे कोई मैनेजर बनने के लिए नहीं आया था. हाँ, they came there to get the knowledge. गेट द नॉलेज Yeah. कि आई एम ऑलरेडी अ मैनेजर, हाँ. लेकिन मेरे को सीखना है. हाँ. मे बी आई एम नॉट डूइंग एज गुड एज Can do. आई कैन डू. हम्म. तो मेरे को अब पढ़ना चाहिए हाँ. so that I can do better in my life or better as a manager. That's what I came to know. And then while I was studying, Yeah. I started applying just to check हम्म. कि मेरे को किस टाइप के जॉब्स मिलेंगे. हम्म. राइट. तो मेरे को कॉल्स कुछ भी नहीं आए. ओके. व्हेन आई अप्लाइड, मतलब मैं हाईलाइट नहीं कर सकता था कि मैं मास्टर्स कर रहा हूँ. हाँ. राइट. जस्ट टू चेक द वाटर्स. हाँ. मैं अप्लाई करना शुरू किया एंड विथ माई ओन रिसर्च आई केम टू नो दैट मैं मास्टर्स फिनिश भी कर लूंगा तो मेरे को कोई जॉब नहीं मिलने वाला है उसके बेसिस पे. हाँ. एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली. उस टाइम पे मेरा 15 लाख का लोन था. मैं ऑलमोस्ट 1 साल की पढ़ाई कर चुका था एंड दैट वाज देन आई केम टू नो कि अभी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा तुम कर सकते हो. डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट, मैं थोड़ा सा भूल भी सकता हूँ. 10 सब्जेक्ट, टोटल 12 सब्जेक्ट और एक रिसर्च था. यू डू 10 सब्जेक्ट्स, यू डू गेट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा. You get 12 subjects and a research, you get a master. masters. So I was about to finish my postgraduate diploma and that's when I thought कि मेरे को masters करना है या नहीं करना है. Okay. I went and spoke to my dean and he said people take breaks. You can finish your postgraduate diploma right now without looking at my visa status or PR का क्या है क्या नहीं है. He just gave his honest opinion कि people do that. तुम postgraduate diploma कर सकते हो अभी and then take a break. Do your job and when you think कि तुम्हें जरूरत है और you can always come back as a returning student, do 2 subjects and a research which is 6 months of study and then you can take masters anytime. I thought okay, Fair enough. Fair enough. मेरे को 5 लाख बच रहे थे, मैं 10 लाख ऑलरेडी लगा चुका था. हाँ. 5 लाख मेरे बच रहे थे. हाँ.
और सबसे मेरे दिमाग में घूमता था कि मैं लोन कैसे पूरा करूँगा, राइट, 15 Yeah. लाख का। Yeah. तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, मैं 10 लाख करके अभी रुक जाऊँगा, और तो फिर मैं वेरिएशन ऑफ कंडीशन डाला Huh. जस्ट टू ट्राई माई लक, Yeah. कि होता भी है कि नहीं होता है। Yeah. मेरे को कुछ नहीं पता था उस टाइम। How to change the visa? हाउ टू चेंज द वीज़ा, मेरे को पीआर लेना भी है कि नहीं लेना है, बिकॉज आई डिडंट हैव दैट इंटेंशन टू डू दैट। Yeah. तो मैं कभी उसके बारे में पढ़ा भी नहीं। Yeah. तो ऐसे ही किसी किसी से पता चलता रहा कि हाँ, आई कैन डू पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, आई कैन अप्लाई फॉर वेरिएशन ऑफ कंडीशन। सो आई अप्लाइड फॉर वेरिएशन ऑफ कंडीशन एंड आई गॉट इट वेल एंड गुड। तो देन आई स्टॉप्ड देयर, एंड देन आफ्टर दैट आई नेवर फेल्ट द यूज ऑफ इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। Need of it. नीड ऑफ, हाँ सॉरी, या यूज तो होता ही है एज योर नॉलेज, Yeah. लेकिन मेरे को अपने करियर ग्रोथ में हाँ, कभी वैसा जरूरत नहीं पड़ी। एक स्टेज नहीं आया व्हेन आई थॉट कि, क्योंकि आजकल यार डिग्री की यहाँ पे वैल्यू है नहीं, कोई तुम्हें डिग्री देख के नौकरी नहीं दे रहा है, और नॉलेज गेन करने के लिए तुम्हारे पास 50 चीज़ें हैं। हाँ, मतलब आज की डेट में तो you have so much information हाँ, available online that एग्जैक्टली। अगर you तुम्हें can आज, learn any skill you want. या Yeah. अगर तुम कॉलेज नहीं भी जाओ हाँ. फिर भी तुम 50 चीज़ें हैं Hmm. इफ यू वांट टू लर्न, Yeah. राइट। तो दैट इज द रीजन, एजुकेशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, इट डिपेंड्स इन व्हाट वे यू टेक इट, राइट। Correct. तो अगर मेरे को कहीं पे पता चलता कि हाँ मेरे को इस डिग्री से फायदा है, Hmm. तो मैं शायद डिग्री करता Hmm. वो चीज़। लेकिन मेरे को अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए 50 चीज़ें और मिली, मैं नॉलेज बढ़ाता गया, अपना स्किल्स बढ़ाता गया अपना, Hmm. एंड आई डोंट फील कि मेरे को कभी उस चीज़ की ज़रूरत पड़ी। मे बी आगे जाके ज़रूरत पड़े, लाइफ हैज़ नॉट एंडेड, Hmm. तो आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी तो मे बी आई विल गेट बैक टू इट एंड Perfect. डू दैट। बट आज की डेट में जो वीज़ा रेगुलेशन है उसके हिसाब से मास्टर्स इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू फ्रॉम द वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू. या So not talking about the knowledge point of view, because any which ways, if somebody wants to have the knowledge, they can just acquire it from anywhere. Yeah. We are living in the era of ChatGPT, DeepSeek. या So I don't think that is something which is especially like applications like Udemy and all, Yeah. they have like very good lectures, Yeah. which is very cheap as well. Yeah. You know, तुम $15 or $20 में you get like a course of like 40 hours. Yeah. So which is like Like there's one student I was telling you I met yesterday. So he has come here for supply chain management. I said, before you even finish your degree, there is a course by Mr. Dr. Rajat Agarwal from IIT Roorkee, which is available on YouTube free of cost, and he has explained each and everything about supply chain. Exactly. So whoever comes here on supply chain course, I give them the link of that course, that even if you want to do any project, you want to do anything Just in go the there class, and yeah. go through that course, you will get fair amount of idea how supply chain works. Exactly. So that is really going to help you in the class, making the project. You can outshine in the class and you will do wonders. Yeah. Yeah. So And there's also an opportunity to ask questions. yeah, Like you you can have that personal touch, and you know you Yeah. can ask questions with your otherwise you teacher. will just sit in the class, Huh. look like a dumb person that Exactly. Exactly. you are still learning. But if you have that base of knowledge that you can really build upon. All right, so that is done. Now let's talk about the later phase. So this is your student journey. You didn't complete your masters, got out of the university with a postgraduate diploma. How did you find the job? First question. Second question, in what area did you find the job? Third, what kind of projects you were doing, because that is again a very important thing for people to know, like what all kind of projects which are available, which not so experienced person can join. Because like your case, you had couple of years of experience in India, you did postgraduate diploma here, and now you are out there seeking a job, which is the next step in your career. Yeah. So how all did that happen, and how did you get into the workforce in a manner that you never had to look back? Because since I know you, you have been continuously working. So later stage will come later on, but in those initial 3, 4, 5 years of your journey, how was that? Yeah, first year was tough, Okay. to be honest. शुरू में labor jobs भी करना पड़ा. I was working in a restaurant, and you know, when you have already worked in corporate in India, वहाँ पे तुम्हें जब तुम एंटर करते हो तब वो गुड मॉर्निंग सर बोलने वाले भी लोग बाहर खड़े रहते हैं, राइट? Yeah. तो that gives you a feeling that you have achieved. Yeah. You have achieved nothing in your life, Yeah. but that gives you an achievement, sense of achievement, that young, at that young age. तो जब यहाँ पे आते हो, then एक mindset लेके आना होता है
बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। Uh-huh. क्योंकि मैं जब आया था मेरे पास रेंट देने के भी पैसे नहीं थे। मेरे को बैंक ने बोला था कि तुम वहाँ पहुँचना, बैंक अकाउंट खोलना हाँ. और मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा, तुम्हारे जो Living एक्सपेंसेस, expenses. लिविंग हाँ. एक्सपेंसेस वाले होते हैं। तो मैं बोला ओके, मैं आ गया, $200 लेके आया था मैं। Okay. मेरे को लगा जाऊंगा, जाके वहां तो बैंक अकाउंट खोलना और पैसे तो आ ही जाएंगे मेरे पास। हाँ. और $200 कितना होता है? $200 तो एक रूम का तुम एक वीक का किराया. लेकिन डिपॉजिट भी तो देना होता हाँ, है रूम लेने डिपॉजिट. के पहले। हाँ, करेक्ट. तो जब मैं खाना गया, भी खाना है. हाँ खाना भी खाना है। हम्म. तो 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, मैं बैंक से पूछ रहा हूँ कि बोला हाँ हाँ प्रोसेस है, रुक जाओ। बोला ठीक है। मेरे को घर मिल चुका था, लेकिन वहाँ पे एंटर करने के लिए मेरे को डिपॉजिट नहीं था। तो मैं गया उसके पास, पूछा कि डिपॉजिट नहीं है मेरे पास, रेंट में दे सकता हूँ 1 वीक का, लेकिन मेरे पास डिपॉजिट नहीं है। तो अच्छा बंदा था, तो वो बोला ठीक है कोई बात नहीं, I'll wait for a week. It took 3 weeks To for open them. the bank account? No, I opened the bank account on the day when I arrived. Okay, to For open the bank account. For the नहीं, bank to ऐसा process. Oh, so for bank Punjab to send. National Bank to process the money Oh, and put it in my bank account, in New Zealand bank account. It took roughly 3 weeks. oh, okay. तो वो मेरे को नहीं पता था। आई केप्ट ऑन वेटिंग, और ये वो पापा भी वहाँ पे परेशान था कि बच्चे के पास पैसा नहीं है बिल्कुल, ये वो। तो फिर समवन इंट्रोड्यूस मी टू SJS, which is Student Job Search, Yeah. which was one of the wings in Victoria University where you can go and search for the jobs. तो वहाँ पे जाओगे तो सारे तरह के जॉब्स होते हैं। तो जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव व्हाट यू कैन, मतलब यू माइट हैव टू डू इज, अगेन जो मेरा फ्रेंड था उसने फ़ोन किया, उसका भी सेम सिचुएशन था। तो बोला कि लेबर जॉब करेगा? बोला अभी तो कुछ भी करूँगा यार, हाँ. बोल क्या करना है? हाँ. तो बोला स्टूडेंट जॉब सर्च में एक आया है, मेरे को मिल गया है, लेकिन उसको और बंदे चाहिए। तो बोला चलो ठीक है, तो एक और बंदा चाहिए। बोला ठीक है हाँ चलो चलते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि एक बड़ा सा ड्राइववे था हाँ. घर के बाहर, और विंटर वाज अराइविंग दैट टाइम ना, अराउंड यही टाइम था, हाँ. एंड ऑफ मार्च ना, हाँ. स्टार्ट ऑफ अप्रैल। तो विंटर आने वाला था। तो व्हाट पीपल डू इज, लॉग्स ऑफ वुड होते हैं जो फायर प्लेस में जाते हैं, हाँ. वो पूरा एक छोटा ट्रक पूरा डंप करके गया था, बिकॉज इट कुडंट एंटर द ड्राइववे। हाँ. तो वहां पे बाहर डंप करके गया था, हाँ. एंड आवर जॉब वाज टू ब्रिंग दोज लॉग्स ऑफ वुड Into the house. इनटू द हाउस, अंदर जाके ऊपर सीढ़ी चढ़ के वहां पे स्टैक करना था। हाँ. एंड इट टुक अस अबाउट 6 hours roughly, Wow. सारे उसको उठा उठा, एंड दैट वाज माय फर्स्ट लेबर जॉब। Okay. तो वो तो मस्ती में चला जाता, दैट इज योर हाँ. एज, हाँ. नथिंग हाँ, you are feels young bad। and और thriving. एक फ्रेंड है साथ में, बकवास हाँ. करते हुए, मस्ती करते हुए, नए नए उपाय करते हुए कि अरे पहले तो कैसे लेके जाएं। तो एक बोरी ढूंढा, उस बोरी को काटा बीच से ताकि वो लंबा हो, उसमें जितने लगा सकता था वो दोनों साइड से पकड़ पकड़ के। हाँ. फिर उसके बाद हुआ कि नहीं ये और देर हो रहा है इसमें, तो सारे ला के पहले नीचे रखते हैं, उसके बाद ऐसे ऊपर फेंकने से हाँ. ऐसे अंदर ना जाना पड़े। हाँ. तो मतलब ऐसा पूरा दिमाग लगा के उस हाँ. पर स्टैक स्टैक कर दिया और बहुत खुश हो गया। और उस समय मेरे को ये नहीं पता था कि आवरली मिल रहा है, नहीं तो हाँ. और आराम से करता रहा। बनिया दिमाग किक्स इन. हाँ, नहीं तो उस समय तो मासूम होता है ना बंदा कि हाँ मेरे को काम करना है, मैं जल्दी 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 जल्दी, नहीं तो वो शॉर्टकट क्यों लगाता है? मैं तो आराम से अंदर अंदर करता, बोलता हाँ चलो कल आऊंगा। तो अब Now the managers is coming in. एग्जैक्टली यार, उस समय तो $5 या कन्वर्ट करते हो ना तुम। हाँ. और उस समय 33 रुपए का था, अभी तो Okay. 50 हो गया है। हाँ. उस समय 33 रुपए था इंडिया हाँ. ना, तो हर चीज तुम अगर $5 भी मिलता तो बोले 1500 रुपए आ गए। हाँ. तो खैर एनीवे वी फिनिश्ड एट 6 hours, Yeah. और आई थिंक $10 ने ऐसा कुछ दे रहा था, और उसके ऊपर से मेरे को $10 और दे दिया, और हम बहुत खुश हो गए कि अरे यार ये कितना बढ़िया बंदा है, देखो $10 एक्स्ट्रा दे दिया हमें, 1 घंटे का एक्स्ट्रा दे दिया। तो इट वाज कैश जॉब एनीवे, यू हैव टू डू दैट। एंड Yeah. देन आई गॉट माय फर्स्ट जॉब इन अ रेस्टोरेंट। Hmm. तो अगेन दैट इज That's part-time job. You're yeah, talking. part time Yeah. while I was studying. Yeah. While I you're was studying, so Yeah. 20 hours you can work, right? Yeah. तो I got my job in a restaurant, Yeah. और वहाँ पे जब मैं जॉब कर रहा था, but I kept on looking for a job in IT, Yeah. कि मेरे को एक्सपीरियंस हो, Yeah. मेरे को ये तो नहीं करना ना, Uh-huh. तो ये तो मेरा रेंट दे रहा है, लेकिन हाँ. मेरे को पता था कि क्या करना है, Correct. राइट? तो आई केप्ट ऑन लुकिंग फॉर अ जॉब इन IT, एंड आई वाज लकी इनफ, lucky among a lot of people, that I got a job in Wellington City Council. Wow. So As- that was your first full-time job. No, that was again part time. Part-time. Okay. वो सिर्फ 3 हफ्ते का था Okay. उस टाइम पे। Okay. सिर्फ 3 हफ्ते का था जॉब, तो इसीलिए मैं रेस्टोरेंट भी नहीं छोड़ पाया हाँ. कि 3 हफ्ते के बाद तो ये खत्म हो जाएगा, हाँ. और मैं इसको भी छोड़ दूंगा तो ऑब्वियसली कहाँ जाएगा। ये कैश जॉब हो रहा था, आई डोंट नो इफ आई कैन से। No. हाँ. Yeah. तो Let's not encourage people to. no, it's bad, it's Yeah. definitely bad।
उस टाइम पे टाइम अलग था, हाँ इमिग्रेशन उतना स्ट्रिक्ट नहीं था, और आजकल यू कैन नॉट डू दैट। या पहले रेस्टोरेंट्स में इट वाज वेरी कॉमन कि लोग कैश जॉब देंगे तुम्हें, हाँ जो तुम्हें मिनिमम वेज से कम देंगे। हाँ लेकिन थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। यहाँ पे इतने सारे बिजनेसेस बंद हो चुके हैं, कितने सारे लोग जेल में हैं, हाँ उसकी वजह कितने से सारे फाइन लगे हैं उनको। बहुत सारे फाइन्स लगे हैं। तो हाँ आजकल वो कोई नहीं करता है, हाँ वो टाइम था कि करता था। तो एनीवे आई थॉट कि यहाँ तो मेरे पैसे बन रहे हैं, 3 हफ्ते के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट लीव दैट, यू नो। और इसी चीज़ों की वजह से लोग एक्सप्लॉइट भी होते हैं, करेक्ट क्योंकि इट वाज नॉट माय चॉइस या एट दैट टाइम, इट राइट। वाज द सिचुएशन। हाँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये रूल्स फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेरे को बस ये था कि मेरे पास एक जॉब था करेक्ट जो मेरे को रेंट दे रहा है मेरा, राइट। तो आई हैड टू टेक दैट। और उतना ना दिमाग भी नहीं रहता है उस टाइम पे, हाँ मैंने यार आए हो यार, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे को पैसे दे रहे हो, मेरे काम कर रहा हूँ, करेक्ट राइट। So I kept on working, and that's where my testing journey started. ऑलराइट Right, I worked as a .NET developer in India, and then PeopleSoft later as a people code developer in India. And then when I came here, and then that 3 weeks of job continued for the whole about a year. ऑलराइट So I was ऑकलैंड वेलिंगटन Wellington सिटी में, Wellington वेलिंगटन City सिटी Council काउंसिल। में I worked as a tester. ओके Basic ही था job, लेकिन I worked as a tester there for 1 year. And then when I started applying, जब मैं फिनिश कर लिया अपनी स्टडीज, व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर अ फुल टाइम जॉब, देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग एज अ डेवलपर अगेन। और मेरे को मिला नहीं, ओके क्योंकि देयर इज अ कॉन्सेप्ट न्यूजीलैंड एक्सपीरियंस। आई डोंट नो व्हाट दे डू विद न्यूजीलैंड एक्सपीरियंस इन आईटी, बिकॉज आईटी इज आईटी या wherever you do it. But then again, people prefer people who have IT experience, New Zealand experience. So I kept getting calls for testing, ओके but not for the development role, बिकॉज यू हैड दैट प्रीवियस एक्सपीरियंस। because I had 1 year of New Zealand experience in testing, ऑलराइट right? Huh. And with a name which everyone knows that he has worked वेलिंगटन for a year सिटी at काउंसिल। Wellington City Council as a tester. Yeah. He has testing experience here in New Zealand. I had references and everything, because in India you don't get references, हाँ right? अगर मैं अभी किसी को भी फ़ोन करूंगा, फ़ोन भी नहीं कैसे करते उस टाइम पे, हाँ इतना व्हाट्सएप भी नहीं था। करेक्ट यू हैव टू बाय दैट कॉलिंग कार्ड। कॉलिंग कार्ड या हाँ, तो Yeah. वो, और उस समय वो मैनेजर्स के साथ उतना वो रेपो भी नहीं, मतलब रिलेशन नहीं होता था कि मैं लेके तुम्हें से रेफरेंस लूंगा, एंड इट वाज वेरी हार्ड एनीवे, Yeah. एंड नो वन केयर्ड फॉर इंडियन Yeah. इंडिया रेफरेंस। But it is opposite here. हाँ, You get references right exactly, from the day one. exactly. Yeah. Yeah, you can trust people that, okay, even if we have, I give references to people like, for my managers or test leads or anyone who I have worked with like 5 years back, Yeah. and they are happy to do that, because you build that relationship, right? Correct. Market is small, you have to build that relationship, you have to work with each other and all. Yeah, anyway, so I had that New Zealand experience. So how did you land up that very first job in Wellington City Council? Because that is very important for people to know, like what process did you follow, because you're just out of the university. It was again Yeah. at student job search. तो Okay. वहाँ पे IT के भी जॉब्स आते हैं, Okay. हर तरह के जॉब्स आते हैं, Okay. नॉट जस्ट लेबर जॉब्स। Okay. हर तरह के जॉब्स आते हैं, हाँ, हाँ। लेबर जॉब्स ज़्यादा आते हैं। क्योंकि वो वन ऑफ्स ज्यादा होते हैं, तो यू हाँ। हैव, आई थिंक, एज लॉन्ग एज आई रिमेम्बर, देयर आर 4 different type of jobs: पार्ट टाइम, वन ऑफ्स, फुल टाइम, एंड देन कॉन्ट्रैक्चुअल। Yeah, तो दिस इज व्हाट आई रिमेम्बर। yeah. So हाँ, वन ऑफ ज़्यादा आते हैं उसमें, हाँ IT वाईटी का कम आता है। करेक्ट लेकिन हाँ, आई वाज लकी इनफ कि मैं आई वाज देयर एट अ राइट प्लेस एट राइट टाइम। करेक्ट मेरे को इंटरव्यू का कॉल आ गया। हाँ अगेन मेरा फ्रेंड ही मेरे को बोला था, बिकॉज आई वाज लाइक फ्रॉम, यू नो, एवरी टाइम आई वाज आउटसाइड, हाँ तो रात में ही देखता था, तो वो मेरे को फ़ोन करके बोला था कि हाँ, जॉब अप्लाई मैं भी कर रहा हूँ, तू भी कर दे। और अनफॉर्चुनेटली मेरा हो गया था, उनका नहीं हुआ था। तो ये तो फॉर्चुनेटली हुआ। फॉर्चुनेटली हुआ, आई मीन, फॉर हिम इट वाज नॉट फॉर फॉर्चुनेट। हिम इट वाज अनफॉर्चुनेट, हाँ लेकिन अब इंटरव्यू ही हुआ था, हाँ तो आई गॉट सेलेक्टेड। आई फेल्ट बैड, बट देयर वाज नथिंग टू फील बैड एज Yeah. सच। हाँ, उसने मेरे को रेफर करा था, हाँ लेकिन एग्जैक्टली अगेन Everything इट is ऑल कम्स टू स्किल्स, skills. राइट? हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, व्हाट यू से देयर, और व्हाट दे आर लुकिंग, व्हाट Yeah. दे फील, इट्स नॉट इन योर हैंड, राइट? हाँ, जॉब्स में तो तीनों ही गए थे इंटरव्यू में, तो हाँ, मेरा हो गया था, उन दोनों का नहीं हुआ था, एंड दैट्स हाउ आई एंडेड अप देयर। All right. हाँ, तो मे बी आई वाज जस्ट लकी। And then when did you get your first full-time job? When was So that? when I finished my studies,
Then I asked my manager that okay, can I go full time now? And he said अभी 2-3 महीने में हमारे पास रिक्वायरमेंट आएगी, ओके। अभी नहीं है, हाँ। वेट करो, आई एम वेरी कीन टू टेक यू, लेकिन अभी मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। ओके। सो आई केप्ट अप्लाइंग आउटसाइड। तो उस टाइम पे मेरे को ऑकलैंड में फुल टाइम पहला जॉब मिला, दैट ओके। इज़ वेस्ट एंटरटेनमेंट, जो हम्म। सिनेमा सॉफ्टवेयर बनाती थी। तो जितने भी सिनेमाज, इवन इंडिया में आप जाओगे तो किसी भी सिनेमा में जाओगे तो पॉज मशीन्स होते हैं हाँ। काउंटर पे, उस हाँ। पॉज मशीन में जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो विस्टा एंटरटेनमेंट बनाती है। ओके। दैट इज़ अ वेरी स्मॉल कंपनी, दे हैड अबाउट 50 पीपल दैट टाइम, हाँ। but they were still ruling the world with 50 people. Now they नाइस। have grown to like more than 400 people now. वाओ। छोटी कंपनी थी उस टाइम पे, हम्म। बट हाँ सिनेमा सॉफ्टवेयर बनाती थी। बुक माई शो के या। साथ उनका कोलैबोरेशन था इंडिया में, हाँ। तो उसमें मेरा पहला जॉब लगा था, वेयर आई वर्कड फॉर 3.5 years. And that's when I think when we met, around that time when you were working with Yeah, Extended. yes, Extended. yes. This was towards the Grafton area. Yeah, Yeah. yeah. So I moved. I was there in Wellington for 1.5 years. So Hmm. I came in 2010, Hmm. and then about mid 2011 I came to Auckland, and then that's when I met you. मेरा पहला जॉब लगा था, which was I think $47,000. That was way below the market salary, क्योंकि obviously I was a fresher just out of again ये बताना चाहूँगा कि This 47,000 is with Wellington or Vista? Vista, Okay. which is way lower salary than the market. It was, but anyway, वो मेरे जो इंडिया का एक्सपीरियंस था वो भी कोई काम नहीं आया था। लोगों के केस में अलग अलग हो सकता है, मेरे केस में ना मेरी पढ़ाई काम आई थी यहाँ पे, ना मेरे को मेरा जो एक्सपीरियंस था इंडिया का, क्योंकि आई वाज चेंजिंग द फ्लो अगेन। Hmm. मेरे 2 साल का डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस, मेरे को कॉल्स ही नहीं आ रहे थे। मेरे को जब सिर्फ 1 साल के टेस्टिंग एक्सपीरियंस पे के बेसिस पे मिला था, एंड दैट वाज लाइक अ फ्रेशर सैलरी हाँ। दैट टाइम। और उससे मैं सोचा था कि मैं ग्रो कर जाऊंगा, ग्रो कर जाऊंगा, ग्रो कर जाऊंगा, क्योंकि साल भर तो तुम्हें चढ़ाते रहते ना, हाँ तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मुझे लगता था इस बार तो मैं फोड़ूंगा। हाँ। लेकिन जब रेज मिलता था तो कितना 47 से 49 हो जाता था, हाँ। $200 $200 ज़्यादा मिलते थे महीने हाँ। के। हाँ। तो हाँ, आई शुड हैव लेफ्ट अ बिट अर्लियर, लेकिन हाँ विस्टा के बाद मैं But did you get करा। your residency from this company? यस आई डिड, Okay. यस So आई डिड। that is something good what happened from here. लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे को ये कंपनी नहीं मिलती तो मैं नहीं लेता रेसिडेंसी, क्योंकि मेरे पास पॉइंट्स बहुत, क्योंकि पॉइंट्स मेरे पास इसलिए थे क्योंकि मेरे पास उस समय जैसे पॉइंट सिस्टम चलता था, मेरे पास बैचलर्स डिग्री आईटी में थी, Hmm. उसके बाद इंडिया में एक्सपीरियंस Hmm. आईटी में था, Hmm. मेरे पास मास्टर्स आईटी का था, Hmm. मेरे पास काउंसिल में Postgraduate diploma. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आईटी में था, हाँ। काउंसिल में जॉब आईटी में थी हाँ। 1 साल में। हाँ। तो आई हैड, And that was also a full-time job हाँ, in नहीं Wellington. नहीं नहीं, वो पार्ट टाइम ही था, हाँ, लेकिन but एट points लीस्ट मिल रहे थे हाँ। उसमें। और उसके बाद मेरे को जब विस्टा में पहली बार फुल टाइम जॉब मिला तो हाँ। मेरे पास पॉइंट्स हो जा रहे थे। Okay. Okay. हाँ, तो All right. और एक चीज़ और है, इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ जॉब, हाँ। तब तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाती है। हम्म। जब तुम्हारे पास जॉब नहीं रहता है तब हाँ। तुम्हारी वैल्यू नहीं होती है, Correct. तब तुमको नहीं चाहिए। हाँ। अगर तुम ऑलरेडी एक जॉब में हो, तुम 2 महीने के बाद भी अगर स्विच करना चाह रहे हो तो तुम्हारी हाँ। वैल्यू ज़्यादा है। So you always have to be in the job market हाँ to get better options for you. हाँ, Yeah. यू हैव टू गिव एवरीथिंग टू गेट योर फर्स्ट जॉब। हम्म। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगा, विच आई वॉज ऑलवेज अगेंस्ट, बहुत सारे आईटी के बंदे मैं देखा हूँ जो मेरे से सीनियर थे, 4-4 5-5 साल का एक्सपीरियंस आईटी में था उनका, हाँ। लेकिन वो जैसे रेस्टोरेंट में उनको जॉब मिल गया, हाँ। सबवे में जॉब मिल गया, ये सब। लेकिन काम कोई छोटा नहीं होता है, काम सब ठीक है, लेकिन डिफरेंस यहाँ आता है कि तुम क्या कर रहे हो उससे पहले, तुम्हारी स्किल्स क्या हैं और तुम क्या कर रहे हो अभी, हाँ। राइट? तो बहुत लोग क्या होता है कि उनमें इतना ज़्यादा ये रहता है कि मेरे को न्यूजीलैंड रेसिडेंसी चाहिए, मेरे को यहीं रहना है, मैं वापस नहीं जा सकता, ये करता है वो करता है। दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न वाई पीपल गेट एक्सप्लॉइटेड हम्म। एंड पीपल रूइन देयर करियर, हम्म। क्योंकि उनको लगता है कि यार मैं रेस्टोरेंट में हूं ना भी, ये मेरे को स्पॉन्सर करने को तैयार है, मैं ये बोल रहा है कि मैं 2 साल और रुक जा, मैं तेरे को स्पॉन्सर कर दूंगा और रेसिडेंसी हो जाएगी तुम्हारी, और उसके बाद मैं देख लूंगा ना। हम्म। उसमें नहीं रुकना है। हम्म। अगर तुम इसमें रुक गए कि हाँ मैं तो आईटी में करा था ना, लेकिन अगर मैं फिर से अभी कहीं चला गया, पता नहीं वो स्पॉन्सर करेगा कि नहीं करेगा, तो मेरे को जाना पड़े, वो डर में मैं देखा हूँ अपना पूरा करियर बर्बाद करते लोगों को, जो अभी तक वही कर रहे हैं, अपने आईटी में इंजीनियरिंग करके इंडिया से आए हैं, वहाँ पे जॉब भी करे, हर कुछ करके आए, यहाँ पे एक अच्छी लाइफ जी सकते थे, ठीक है, जॉब सही है, सब कुछ सही है, छोटा काम कुछ नहीं होता, लेकिन
आगे चल के वही काम आता है कि तुम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को कितना कंफर्ट दे सकते हो, तुम अपनी लाइफ कितनी कंफर्टेबली जी सकते हो। क्योंकि सिर्फ पैसा नहीं होता है। एक अच्छे कॉर्पोरेट जॉब में तुम्हारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तुम्हारे जब तुम्हारे बच्चे हो जाते हैं तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हो जाती हैं, तुम्हारे लाइफ के इम्पोर्टेंस मतलब प्रायोरिटीज चेंज लीव्स होती हैं, मिलती हैं, लीव्स मिलती हैं। अलाउंसेस अगर मिलते हैं। जैसे तुम्हें छुट्टी चाहिए या फिर तुम्हें हाफ डे मान लो घर से ही घर में आना है बच्चों के लिए, या बाद में काम करना है, जो भी चीज़, बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है हाँ, जो तुम्हारे कस्टमर फेसिंग में नहीं होती है। हाँ। राइट। और अगर कॉर्पोरेट में जाते हो तो उनके पास हमेशा बैकअप रहता है। हुँ। तो ये सब चीज़, इट्स माय पर्सपेक्टिव ऑफ थिंग्स, या, राइट। या, इट या। इट डिपेंड्स। हर काम सही है लेकिन इट शुड मैच योर स्किल। करेक्ट। ठीक है, अपने स्किल के नीचे कभी काम मत करो। तो स्किल बिल्डिंग के लिए व्हाट डिड यू डू while you were on the jobs? And because right now the situation is way better, हम्म so what did you do to get to this stage where you are at right now? So what all skills did you acquire over the period of time which helped you reach here where you have reached? इट्स वेरी हार्ड टू से, Hmm. क्योंकि हर किसी की लाइफ सेम नहीं होती है, हर किसी के सोचने का तरीका सेम नहीं होता है। बहुत लोग जैसे मेरे साथ ही जो विस्टा में थे लोग, वो भी ग्रो करे हैं, मेरे से लेट ग्रो करे हैं, वहीं पे टिके रहे, वो लंबा ग्रो करे। जैसे कंपनी में बोला, जैसे 50 लोगों से अभी 450-500 लोग हो गए हैं उसके, हाँ, 2 ऑफिसेज हो गए हैं। तो एज द कंपनी ग्रोज वो पुराने लोग ग्रो इम्प्रूव करते होते हैं हैं, विद राइट। द कंपनी। हाँ। हाँ, लेकिन व्हाट आई वोंट से दैट आई हैव ओनली डन IT ओके। because of whatever little I have achieved, or I'm able to give to my family. तो ये सिर्फ जॉब से नहीं है। ओके। एक रीज़न ये भी है कि न्यूजीलैंड जैसी कंट्री में आपके पास अभी फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही थी जॉब में। हम्म। दूसरा ये पर्क है कि यू हैव असाइंड आवर्स, राइट। या। No one can force you to work more than 8.5 hours, including lunchtime of half an hour, ओके। right? Eight या। hours is in your contract. कभी कभार तो ऑब्वियसली चलता है, प्रोजेक्ट रिलीज है और ये सब है, तो तुम्हें ज़्यादा काम करना पड़ता है। इफ़ यू आर continually working for more than 8 hours, either you are putting your ऑल इन। all in without मोर देन ऑल इन। without raising it, या। तो उसमें रीज़न क्या होता है? या तो उनके पास एम्प्लॉइज़ कम है, या। मैनफोर्स कम है, या तो फिर काम ज़्यादा, दैट इज़ रिलेटेबल, राइट? या। कि तो फिर उनको और ज़्यादा बंदे चाहिए, ठीक है? तो तुम बोलते हो कि नहीं, मैं और पैसे बचाऊंगा कंपनी की, और मैं 10-10 घंटे काम करूंगा। यहाँ पे कंपनीज खुद रेज कर देते हो, तुम इतना काम क्यों कर रहे हो? हाँ। है ना? क्योंकि यहाँ पे रूल्स हैं। वर्क लाइफ बैलेंस यू आर हाँ, गोइंग टुवर्ड्स। नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस पे जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स भी हैं ओके। कि तुम 8 घंटे से ज़्यादा काम, मतलब वीक में 40 घंटे से काम ज़्यादा नहीं करोगे, ओके। और जितना तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ उससे ज़्यादा काम नहीं करोगे। इफ यू आर वर्किंग यू हैव टू बी कॉम्पनसेटेड फॉर दैट। ओके। ऐसा नहीं है कि तुमसे फ्री कंपनी में नहीं फ्री करोगे। में नहीं करोगे, हाँ। राइट। और तुमसे पूछा जाएगा कि हाँ। तुम करते हो या करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ओके। राइट। नो वन कैन फोर्स यू टू वर्क मोर हाँ। देन दैट। तो दैट कम्स टू अगेन वर्क लाइफ बैलेंस, दैट। और आईटी में, मैं आईटी की बात कर सकता हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी मोस्ट ऑफ द कंपनीज में है, एक दुक्का होंगी जिसमें नहीं है, फॉर देयर ओन रीजंस। क्लाइंट रीजन हो सकता है, 50 तरह के रीजन हो सकते हैं। यू कैन start around 7 हाँ। in the morning, maybe 6:30 as well, as early as, and then finish at 2:30, 3 o'clock, 3:30. ऑलराइट। Yeah. So शाम में पूरा टाइम रहता है तुम्हारे पास। हाँ। समर्स में रात को 9 बजे अंधेरा होता है, हाँ। और तुम 3:30 बजे अगर तुम घर आते हो, या 4 बजे घर आ जाते हो, 4 हाँ। बजे से लेके 5 घंटे तुम्हारे पास रहते हैं, हाँ। या 4 घंटे रहते हैं तुम्हारे एंड पास यू कैन सनलाइट। यूटिलाइज दैट टाइम टू डू अदर Other stuff, या। if you have, like, again, हम्म। what you want in your life, what stage of life you are in. करेक्ट। If you want to spend that extra time with your family, if you have kids, या। right, you want to take your dog for a walk, या। और अगर तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं है, हाँ। then you can think कि हाँ, मेरे पास इतनी सेविंग है हाँ। जिससे मैं कुछ और कर सकता हूँ जो मैं शाम में करना। आजकल 50 चीज़ें हैं करने को। हाँ। करेक्ट। So that's how you want to grow your wealth। या फिर कोई ज़रूरी नहीं है, हर किसी के लिए मैंडेटरी नहीं है वेल्थ ग्रो करना। बहुत लोग लगता है कि हाँ, दिस इज माई लाइफ दैट आई वांट, आई वांट टू हैव फ्री टाइम, आई आई डोंट वांट टू हैव फ्री टाइम, प्ले स्टेशन, या हाँ। फिर आराम करूं, या जो भी चीज़ करूं, हम्म। देन ऑब्वियसली यू ग्रो अकॉर्डिंगली। या। अगर तुमको लगता है कि हाँ, मेरे पास इतना खाली टाइम है, मैं कुछ और कर सकता हूँ, हाँ। तो यू हैव टाइम फॉर दैट, या। कि तुम और कुछ कर सकते हो, सो right? व्हाट डिड यू चूज टू डू इन दैट एक्स्ट्रा टाइम? यार, अगेन इट केम टू मी, ओके। I didn't go for that. या। And it happens in everyone's life. True. Yeah. As life grows, you see opportunity that what you skills you have got. जब मैं अपना पहला घर लिया था, जी।
तो When was that? Yeah, that's another 2015 2015. 2015 That's में again a very big achievement. हाँ Hmm. तो हाँ मेरी वाइफ भी आ गई थी उस टाइम पे तो So and she when was did you get married? we got married in 2013 All right. तो 2013 के बाद हमारे पास 2 इनकम थे वो भी आईटी में थी Yeah. अभी भी है Yeah. तो अब ऑब्वियसली इनकम डबल हो जाती है हाँ. और जब तुम यंग होते हो तो तुम्हारे खर्चे उतने नहीं होते हाँ. है ना बिकॉज यू आर यूज टू लिविंग इन मिनिमम इनकम Yeah. शेयर्ड हाउस में रहते हो या जब शादी हो जाती है तुम एक छोटा सा एक 1 बेडरूम या 2 बेडरूम ले लेते हो जिसका रेंट कम होता है Correct. एक्स्ट्रा खर्चे नहीं होते हैं तुम्हारे हाँ. पास उतने ज़्यादा खर्चे नहीं होते हैं यू आर हैप्पी विथ लाइक So चीपेस्ट who was doing the कार cooking that time, or you were sharing the responsibility? मैं तो अच्छा इंसान हूँ तो मैं ही कर रहा था नहीं नहीं ऐसा नहीं है वी शेयर्ड एवरीथिंग Okay. नहीं यहाँ Because करना तो पड़ता ही है यार हाँ, क्योंकि करना तो without पड़ता ही that है you would not be able to save money. फैमिली लाइफ वैसे ही बनती है ना हाँ. अगर तुम अपनी इंडिया वाली थिंकिंग यहाँ पे लेके आओगे हाँ. विच इज़ गुड इन इंडिया वहाँ वैसे ही चलता है यहाँ ऐसा चलता है तो नथिंग गुड और बैड Yeah. लेकिन हाँ तुम्हें समझना पड़ता है कि हम कहाँ हैं Hmm. और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है Correct. राइट अगर तुम ये बोलोगे कि मैं शादी करके आ गया और अब तो मैं तो कभी बनाना ही नहीं आता है तो नहीं हाँ. बनाना तो भूखे सो जाओ फिर हाँ. है ना और या सफाई नहीं करना है मैं टॉयलेट तो कभी नहीं साफ करा हाँ. यार ये सब तो है ही यार हाँ. ये तो यू करना ही थिंक्स पड़ेगा. या यू Part of the पार्ट ऑफ द game. गेम Yeah. पार्ट ऑफ द गेम Yeah. या तो करना पड़ता है Hmm. और पर्क्स हैं प्रोज एंड कॉन्स हैं इंडिया में बहुत चीज़ अच्छा है यहाँ पे बहुत चीज़ अच्छा है कहीं पे हाँ. लाइफ गोल्डन नहीं है हाँ. तुम वहाँ पे किसी चीज़ के लिए परेशान होते हो यहाँ पे किसी चीज़ के लिए परेशान होते हो Correct. तो यू हैव टू वे इन तो मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है लाइफ में तो अब तो बर्तन मांजते यार 15 साल हो गए तो We are used to it. अब तो वो काम नहीं लगता है और ना कुछ ऐसा लगता है मेरे को कभी मिस नहीं हुआ कि हाँ बाई होती तो ये हो जाता बाई होती तो वो हो जाता बट जो नए लोग अभी आएंगे वो शायद ये मिस करें, बट हाँ नीड टू बी यूज प्रिपेयर्ड टू हो फॉर इट. जाएंगे हाँ. यूज टू हो जाएंगे हाँ. दे विल गेट यूज्ड टू इट. हाँ ठीक है, तो 2015 में पहला घर आया, हाँ फिर उसके बाद तो दैट वाज पॉसिबल बिकॉज हाँ माय वाइफ वाज आल्सो अर्निंग एंड और फिर डबल इनकम हो गया था एक इनकम पूरा सेव ही हो रहा था और मेरे से भी सेव ही हो रहा था हाँ. तो उसमें मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखी कि आई कुड तो मेरा मन था कि मैं सिटी के पास ही रहूँ ऑलराइट. दूर नहीं जाऊँ हाँ. तो नए घर बनते थे दूर में उस टाइम पे हाँ. सिटी में ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की जगह ही नहीं है. कंस्ट्रक्शन हाँ. नहीं थी जैसे अब क्या हो गया पुराने घर सारे बेच रहे हैं तो पुराने घर तोड़ के नहीं उसमें बना. नए घर आ रहे हैं जैसे एक बड़ा लैंड लेके उसका पुराना घर तोड़ के उसमें 5 घर बन रहे हैं तो हाँ. पहले उस टाइम पे वो 2015 में उतना नहीं था वो नहीं था. हाँ. अगर तुम्हें नए घर में रहना है तो तुम्हें दूर जाना है हाँ. अगर पुराना घर खरीदना है तो यही यू कैन रहना डू है इट इन द सिटी. हाँ. हाँ लेकिन मेरे को कम्यूट नहीं करना. कम्यूट नहीं करना था हाँ. आई हैव नेवर डन दैट एंड आई डोंट लाइक दैट हम्म. तो मैं बोला कि मैं यहीं रहूँगा सो आई चोज टू स्पेंड एज मच मनी एज पीपल वर स्पेंडिंग फर्दर अवे हाँ. लेकिन गॉट माई हाउस इन द सिटी एंड देन रेनोवेटेड इट हाँ. एंड वाइल रेनोवेटिंग 50 मैं बोला कि मैं खुद ही कराऊंगा हाँ. तो क्योंकि ऑब्वियसली पैसे बच रहे थे मैं बोला हाँ. जैसे जैसे होगा वैसे वैसे कराऊंगा तो एट अ स्टेज वी वर लिविंग इन वन ऑफ द रूम्स हाँ. और बाहर पूरा घर रेनोवेशन चल रहा है. उजड़ा पड़ा है मतलब हाँ. हम पाँव लांग लांग के जा रहे हैं ऐसा वाला सिचुएशन था 1.5-2 हाँ. महीने लेकिन इवेंचुअली आई गॉट इट डन और उस जर्नी में आई लर्नड अ लॉट हम्म. कि हाउ रेनोवेशंस वर्क. हाँ जिप हाँ. बोर्ड क्या होता है हाँ. फ्लोरिंग में क्या क्या मटेरियल होते हैं कैसे कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं हाँ. प्लम्बर कब आता है इलेक्ट्रिशियन कब आता है ये कब होता है पेंट कब होता है हाँ. कारपेट कब होता है सारा कुछ सीखा You pretty much became like a construction project manager. हाँ हाँ आई डिड द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर दैट Yeah. बहुत हाँ मुश्किल हुआ हाँ. बिकॉज ऑब्वियसली उस टाइम पे मेरे को कोई नॉलेज नहीं था Yeah. लेकिन जैसे प्लम्बर आया हाँ. तो प्लम्बर बोला कि अब नेक्स्ट इसको बुलाना पड़ेगा हाँ. आपके पास कोई है क्या हाँ. तो वो किसी का नंबर दिया हाँ. उससे पूछा या फिर 2 नंबर दिया या किसी और से पूछा तो हाँ. 4-5 प्लम्बर के नंबर हो गए सबसे लेके कोट ले लिया ये किया तो वो तो खैर नॉर्मल चीज़ हाँ. सबको That's आता part है of the game सबको again. आता है हाँ. और मेरे पास वो टाइम प्रेशर नहीं था हाँ. कि मेरे को कहीं ख़त्म करा के मेरे को बेचना थोड़े था घर बिल्कुल. तो वो मेरे पास लग्जरी ऑफ टाइम था तो मैं सबसे आराम से कोट लेके सब सर्च करके कि हाँ कौन सा अफोर्डेबल है ये वो करके मैं रेनोवेशन कराया तो आई गॉट दैट नॉलेज ऑफ थिंग Correct. देन आई एक्सटेंडेड माई हाउस फॉर अनदर रेंटल अपने घर में ही Okay. तो आई स्पेंट माई टाइम देयर विदाउट हाँ. गोइंग इन टू मच डिटेल दैट्स हाउ माई छोटा छोटा रेनोवेशन वाली जर्नी शुरू हुई एंड दैट्स हाउ आई डिड हाँ. थोड़ा सेव करके जैसे जैसे पैसे आए मैं पुराना गराज था उसको मैं काउंसिल से परमिशन लेके कंसेंट्स करा के उसको मैं 2 बेडरूम यूनिट में कन्वर्ट कराया दैट इंक्रीज माई
Income. इनकम, Yeah. रेंटल इनकम हुआ, देन आई गॉट इनटू एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ आई कैन डू दैट। Yeah. तो आई स्लोली गॉट इनटू छोटे छोटे रेनोवेशंस एंड दिस एंड दैट एज वेल, तो उससे थोड़ा थोड़ा साइड इनकम मेरा बना, एंड हाँ. पीपल कैन चूज Whatever hobby or हाँ liking जो they जहाँ have. पे तुम्हें स्किल की अपॉर्चुनिटी दिखे, इफ यू हाँ. थिंक दैट यू कैन ग्रो मनी देयर। बहुत लोग ऊबर चला रहे हैं, हाँ. उससे डबल इनकम हो जाता है। जो हम्म. बेसिक अर्नर्स हैं, जो अभी भी 4,000, जैसे मैं 47K में गया था, जो 50-55K कमा रहे हैं, हाँ. उनके पास इफ आई एम नॉट रॉन्ग $3,000-4,000 आता होगा महीने का। हाँ. और अगर वो शाम में 4-5 घंटे अगर ऊबर चला लेते हैं, हाँ. तो उनके पास अलग से 2,500 आ जाता है। So that तो दैट एड्स ना। compensate. और अगर Yeah. तुम्हारे पास टाइम है, हम्म. तो आजकल तो सभी चला रहे हैं anyway। हाँ. तो इट्स वन ऑफ द थिंग्स। या फिर शाम में कोई कहीं और जॉब कर सकते हो, इट्स बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, राइट? हम्म. तुमको क्या करना है, तुम्हें आराम करना है कि और पैसे बनाने हैं, या क्या करना है। हम्म. और स्लोली हर So चीज़ you तुम्हें got सिखा के into जाती है। the construction side या of the business. या हाँ. दैट वो मेरा साइड में चलता है। ठीक है. तो इट्स नॉट बिग, हाँ. लेकिन उतना बिग बनाने के लिए टाइम भी नहीं, क्योंकि आईटी भी है। हाँ. And then you have kids, you या have responsibilities. यस So तो मैं जब time कर is पाता हूँ। the only thing which you have short in New Zealand. हाँ Yeah. हाँ, तो बस एक स्किल है जिसको मैंने अपने काम पे लगाया। हाँ. नहीं तो वो वेस्ट ही होता। तो स्लोली दैट्स हाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि तुम्हें लाइफ में ऑब्वियसली कुछ कुछ चीज़ आते रहती हैं, एंड देन यू कीप ऑन थिंकिंग कि ये तुम्हें करना है आगे कि नहीं करना है, यू नो। नाइस. चलो अब हम एक छोटा सा गेम प्ले करते हैं. सो द गेम इज एक मिनट में आंसर देना है. सो पहला क्वेश्चन है कि स्टार्ट टू एंड 5 ऐसी एडवाइस जो आप किसी न्यू कमर को दोगे टू हैव अ स्टेबल लाइफ इन न्यूजीलैंड. सबसे पहले जो लोन लेके आ रहे हो, सबसे पहले उस लोन को उतारो, जस्ट नॉट पे द मिनिमम। या. क्योंकि इंडिया में 12-13% में स्टूडेंट लोन पे करना बहुत मुश्किल है। ओके. सबसे पहला उसको ज़्यादा दे के पहले सबसे पहला तुम्हारा टारगेट होना उसको ख़त्म करना। ओके. बी रेडी टू डू एनीथिंग ओके. इनिशियली हाँ. व्हेन यू आर यंग। हाँ. पीपल कम विद फैमिलीज एज वेल, तो उनका अलग ये है, लेकिन हाँ. व्हेन यू आर अलोन यंग, रेडी टू डू एनीथिंग, बस ओके. पैसे बनाओ शुरू में। पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लो, सिर्फ न्यूजीलैंड में सेटल होने का जरिया मत देखो। जहाँ भी स्किल डेवलप करना है वो स्किल डेवलप करो, और यहाँ के तौर तरीकों से रहो। फॉलो द कल्चर. फॉलो द कल्चर, फॉलो द रूल्स। मस्ती करो, मस्ती हर लोग करते हैं, लेकिन उसको एक Limit यू नो लॉ के दायरे में रह के करो। इंडिया में बहुत चीज़ें माफ़ हो जाती हैं, यहाँ पे एक बार तुम्हारे कुछ लग गया तुम्हारे रिकॉर्ड में, वो बहुत लंबा चलता है। इंडिया में पैसे दे के निकल सकते हो, या 1000 तरीके हैं। यहाँ पे रिकॉर्ड्स तुम्हारा मेंटेन रहता है। फॉलो द रूल्स। Now, second question is, what are the 5 worst mistakes somebody can do while they are living in New Zealand? That's a hard one. Because No, there are mistakes are people, learnings, right? there are things what you can literally avoid. Like, for example, drink and driving is one. Then getting sloshed in the clubs. और शुरू में, जैसे मेरा अपना मैं बताता हूँ, ये गलती मैं खुद करा था। हाँ. तो इसीलिए मेरे ये को पता है हाँ. कि मैं चाहता तो मैं बैंक का लोन जल्दी से उतारना लगता, क्योंकि जब मैं वेलिंगटन में काम कर रहा था, मेरे पास पैसे रहते थे, एक्स्ट्रा बहुत पैसे रहते थे, हाँ. क्योंकि उसमें खर्चे नहीं थे। हाँ. तो चाहता तो मैं नहीं, लेकिन मैं करा हूँ, मैं अपने 2 सेमेस्टर का पैसा खुद से भरा हूँ। तो वो मेरा लोन कम करा ही था, लेकिन उसके बाद भी मैं चाहता तो मैं जल्दी जल्दी लोन पूरा कर सकता था। लेकिन मेरे को उतना नॉलेज नहीं था, ना कोई गाइडेंस थी कि कोई पूछने वाला था। कि मेरे पेरेंट्स भी उतना इंटरफेयर नहीं करते कि तुम क्या कर रहे हो, कितना पैसा कमा रहे हो, और तुमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इट्स जस्ट देयर नेचर। तो कोई गाइड करने वाला नहीं था कि तुम्हारे पास इतनी सेविंग्स है तो बैंक में क्यों पड़ी है, इसको नहीं, और रीपेमेंट करो ना। रीपेमेंट तुम 13% का लोन दे रहे, इंटरेस्ट दे रहे हो अपने लोन पे, तो तुम अपने बैंक में क्यों रखे हो ये चीज? करेक्ट. इसको अगर तुम्हारे पास 2000 भी पड़े हैं, तो 1 लाख तो वैसे ही कम हो गया ना इंडिया में। तो वो चीज़ मैं नहीं करा। ओके. तो मेरे को पता नहीं था। वो मेरे को अकाउंट में देख के बहुत खुश होता था कि अरे इतना पैसा हो, मैं लाख रुपए हैं मेरे पास। लाख रुपए कभी इंडिया में देखा नहीं था, वो लाख रुपए मेरे पास अकाउंट में पड़े हैं अभी, है ना। तो वो देख देख कर ना खुश होते रहते हैं, उसको देख के हाँ हॉलीडे में कर लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, ये कर लेते, लेकिन दैट इज नॉर्मल, क्योंकि तुम बहुत दैट्स ह्यूमन नेचर इन इमोशंस. जब तुम जैसे अगर तुम शुरू से पैसा देखे हो ना, तो तुम वो स्टेज में नहीं आते हो। लेकिन जब तुम शुरू में बहुत बचा बचा के रहे हो, और अचानक यू हैव दैट फ्रीडम, तुम्हारे
तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, और यहाँ पे थोड़ा सा अचीव करना ईजी है चीज़ें, हाँ, है ना, बिकॉज एवरीवन लिव्स इन द सेम लेवल। या यहाँ पे अमीर गरीब का उतना ये नहीं है। हाँ, तुम हर लोग गाड़ी में घूम रहे हैं, हाँ डिपेंड करता है तुम मर्सिडीज में घूम रहे हो, टोयोटा में घूम रहे हो, हाँ, लेकिन सब गाड़ी में घूम रहे हैं। हाँ, हर कोई अच्छे से घर में रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रूल्स है कि जब रेंटल देते हो तो वो एक सर्टेन पर्टिकुलर लेवल ऑफ लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ स्टैंडर्ड में लिविंग रहना मेंटेन चाहिए, करना, हाँ, हेल्दी होम्स होना चाहिए, तो हाँ, सब अच्छे घर में रह रहे हैं, सब लोग हाँ, गाड़ी में घूम रहे हैं, सब लोग को सेम तरीके से रह रहे हैं। हाँ, और ऐसा नहीं है कि तुम अमीर हो, किसी रेस्टोरेंट में घुसोगे तुमको सलाम करेंगे, और तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हारे नहीं करेंगे। हाँ, हर एवरीवन इज ट्रीटेड द सेम वे। तो वो सब चीज़ देख के ना तुम्हें खुशी होती है, एक्साइटमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, एंड देन हाँ, यू स्टार्ट एंजॉयिंग मोर, हाँ, विच इज़ अ गुड थिंग, बट यू हैव टू हैव बैलेंस। द लिमिट्स, हाँ, कि तुम्हारे पास लोन है उसको पूरा करो, एंड व्हाट यू हैव टू डू इन योर लाइफ। हम्म, सिर्फ पैसा नहीं है, तुम्हारे 5 साल के बाद थिंग्स चेंज एंड यू हैव अदर प्रायोरिटीज, एंड देन यू नीड दोज थिंग्स, तो या वो सब करो। तो सेव वो फॉर गलती लेटर, सेव फॉर लेटर बिट, थोड़ा सा मैनेज करो, लेकिन ये बोलना बहुत मुश्किल है यार, थोड़ा सा मेच्योर होके इंसान ये सब चीज़ ज्ञान दे देता है, लेकिन while you are there in that situation, it's एग्जैक्टली, difficult. Yeah, इट्स जस्ट एज यार, yeah, इट्स जस्ट एज व्हेन यू हैव अ डिफरेंट सेंस, yeah. उतना रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होती है, तुम्हें मस्ती करने का एक अलग ये रहता है, टुनून जुनून, रहता है, जुनून रहता है, कि अब तो मेरे पास पैसे भी हैं, टाइम भी है, और एनर्जी एनर्जी भी भी है, सब है। कुछ है मेरे पास, तो मस्ती भी करो, हाँ, लेकिन हाँ, टेक जितना केयर हो ऑफ सके टेक केयर योरसेल्फ, ऑफ ऑफ योर योरसेल्फ। फ्यूचर, हाँ, ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाँ, तो बिलोंगिंग्स, या मिस्टेक्स मैं बहुत देखा हूँ लोगों को, कि हाँ यहाँ पे मस्ती बहुत ज़्यादा होती है, हाँ, नाइट क्लब्स में, बाहर जाते हो घूमने तो हाँ, शराब वराब पीना और मस्ती है ही वहाँ पे, और एवरीवन नोज व्हाट मस्ती इज। या तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि कहाँ पे हाँ, चीज़ें खराब हो रही हैं, हाँ, और हो जाती हैं, वो नहीं होनी चाहिए, हम्म, तो तुम्हें वो चीज़ होना खुद से चाहिए। ही मतलब आप इशारे से समझ रहे हो कि क्या हाँ, करना हाँ, है। बस समझ जाओ कि हाँ, यहाँ पे बहुत खुश हो जाते हैं लोग, जो इंडिया में नहीं मिलता यहाँ पे इजीली मिलता है, तो यहाँ वो देख के पागल मत हो जाओ। हाँ, तुम्हें पता होना है कि तुम्हें कल सुबह जॉब पे जाना है, और तुम्हें आगे क्या करना है, और तुम किस वीज़ा पे हो, या क्या करना है यहाँ पे, उधर तो उसमें फोकस, बह मत जाओ। हाँ, भावनाओं में बहना नहीं हाँ, है, करो, लेकिन शिद्दत बैक ऑफ से। द माइंड तुम्हारे पास रहे कि ये ज़्यादा हो रहा है। परफेक्ट। तो कुछ ऐसी ज्ञानवर्धक बातें 1 मिनट में जो आप देना चाहते हो। अभी भी हमने ज्ञान दिया है बहुत सारा, बट ज्ञान ही दे रहा हूँ शुरू से, इतना ज्ञान मैं जिंदगी में नहीं दिया। ये सारी बातें इसलिए जरूरी हैं क्योंकि इससे रियलिटी का थोड़ा पता लगता है सामने वाले को, जो आज की डेट में, लाइक व्हेन यू इन्वेस्टेड 15 लाख रुपीस, आई केम हियर, आई आल्सो टुक अ लोन ऑफ 15 लाख रुपीस। राइट नाउ दैट माय कोर्स इज Yeah, it's very almost expensive, right? 75 lakh rupees, वाह, is 5 वाह। times the value. तो यूएस में कितना दे रहे हैं भाई? वो सेम है वहाँ भी, तो मतलब यूएस और न्यूजीलैंड सेम हो गया आजकल? pretty much, because there are more number of universities which are available. Then you have flexibility of going to cheap university, medium university, and high-end university. So depending upon which, so I'm talking about, like for example, I came here for pilot training. So हम्म, pilot training that time was 15 lakh rupees. So 33 के आसपास का कोर्स था, तो उसकी जो फीस थी अराउंड 47,000 न्यूजीलैंड डॉलर थी, हम्म। which was approximately हाँ, तो पायलट ट्रेनिंग तो हाँ, एनी वे महंगी होती है वेरी। इस टाइम पे वो फीस $1.5 है। वाह, थिंग्स हैव थिंग्स हैव चेंज्ड। चेंज्ड। सो उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज हो गई हैं आज की डेट में। तो आज की डेट के हिसाब से जो आपको डिसीजन लेने हैं, वो उस हिसाब से पैसा देना है। तो आप बिल्कुल। कमाते भी ज़्यादा हो। मिनिमम वेज उस टाइम पे $12 थी, हम्म, नाउ इट्स $24 अप्रोक्सीमेटली, हम्म, तो हम्म, दैट हैज़ ऑल्सो डबल्ड। हम्म। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज हो चुकी हैं। तो मैं तो सब बच्चों को यही एडवाइस करता हूँ कि भाई जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, वो अपनी सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से लो। आज की डेट में वीज़ा लेना भी उतना ईजी नहीं है जितना पहले था। हाँ, पहले तो 6 महीने पुराने फंड्स हैं, कहीं से भी लाओ। एजुकेशन लोन है, कौन रीपे करेगा? दे हैड नो क्लू, लाइक इमिग्रेशन नेवर आस्क्ड दिस। या, नाउ इफ यू आर टेकिंग अ लोन, दे हैव टू प्रूव दैट हाउ यू आर गोइंग टू रीपे द लोन, हम्म। who is the sponsor, how much income आजकल they have, अच्छा है एक तरह से। because they don't want people to get exploit here. हम्म। The things which you are sharing, they don't want people to come here and not have money to live, या, regardless of that 20 hours of job you can do, which can pay off your bills. But let's say it takes you 3 months to get the job, then what will you do for that 3 months? हम्म। You don't want to go and work in cash.
but Yeah, then you again are doing something bad for yourself and exactly. for the country and for the employer because the consequences are so bad. Yeah. That was my point. Hmm. So any last like before we wind up this, या देखो, any कहना last कहना words? आसान है, करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे रहो तो ये सोच के मत रहो कि मेरे को एनी कॉस्ट में यहाँ रहना है। हाँ तुम्हें वो करने मत आओ। अगर तुम किसी भी तरह यहाँ रहने आ रहे हो तो तुम बहुत बंध जाते हो हम्म, व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू वांट टू ग्रो, क्योंकि उस ना वो ग्रोथ हैम्पर करती है हाँ उस चीज़ में, क्योंकि तुम इतने डरे रहते हो ना कि कहीं वापस ना जाना पड़ जाए, वहीं वापस ना जाना पड़ जाए। हमेशा एक बैक ऑफ द माइंड में लेके आओ कि आई एम ट्राइंग दिस, अगर ये अच्छा होता है और मेरे को अच्छा पाथ मिलता है। तुम हाँ यंग होते हो, यहाँ पे आते हो 20 साल 22 साल में, तुम्हें ये चीज़ देखना है कि ऐसे ही 20-22 साल वाली एनर्जी भी तुम्हारे में नहीं रहेगी हाँ और इतने कम खर्चों में तुम्हारा काम भी नहीं चलना आगे, है बिल्कुल। ना? तो तुम्हें ये चीज़ सोच के चलना है कि 22 साल की उम्र में ही तुमको आगे क्या करना है, उसको फ़ोकस करके चलो, और अगर वो बनता है तो ठीक है रहो। अगर तुम्हें अपना प्रोस्पेक्ट दिखता है यहाँ पे कि न्यूज़ीलैंड में तुम अच्छी तरह से रह सकते हो, तब तुम रहो, नहीं तो अगर तुम जा सकते हो इज़ बट बेटर। इस चीज अगर इस क्योंकि सिचुएशन से बचने के क्या उपाय हैं कि ऐसा ना हो? क्योंकि देखो यही होगा। नहीं 99% लोग तो यही सोच के आते हैं कि हमें यहाँ पर आके सेटल होना है। हाँ। नाउ यू एज अ पर्सन हु इज इन दैट सिचुएशन, so what are the things what they should do where they have the highest probability of avoiding to go back? So what would be those things what they should focus on? तुम्हें अपना स्किल देखना है, हाँ ठीक है? शुरू में जब तुम आते हो, अगेन आई एम गोइंग टू द सेम स्टोरीज़, उसी हाँ से क्रक्स है कि तुम जब आते हो यू हैव टू डू एनीथिंग, हम्म लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ नॉट योर फ्यूचर। या तुम्हारा जिसमें स्किल है, हाँ तुम उसी में ग्रो कर सकते हो, जिसमें हाँ तुम्हारी पढ़ाई है, जिसमें जिसकी चीज़ की तुम पढ़ाई कर रहे हो, हाँ और जो तुम्हारा स्किल है उसमें ही तुम्हें ग्रो करना है। हाँ तुम उससे भटक दूसरी उससे मत भटको। उससे मत भटको, हाँ है ये ना? ये बात है मेरा ना। यही कहने का मतलब था हाँ कि उससे मत भटको कि करेक्ट। मेरे को ये जॉब मिल गया, लेकिन अगर मैं छोड़ दिया तो मेरे को जो इसमें मेरा स्किल है, अगर उसमें जॉब मिला वो वहाँ पे स्पॉन्सर नहीं करे तो, हाँ मेरे को वापस जाना पड़ गया तो हाँ तो तो डोंट ये सब टेक चीज दैट मत रिस्क। सोचो। हाँ तुम डोंट। अपने स्किल पे ही रहो, हाँ करेक्ट। क्योंकि इंडिया में भी बहुत पैसे मिल रहे हैं यार हाँ आजकल, है बहुत ना? बहुत बहुत। भले लाइफस्टाइल इज डिफरेंट, हम्म नॉट बैड और गुड, इज डिफरेंट, लेकिन यहाँ पे एक्सपर्ट होने से अच्छा हाँ बिल्कुल। है ना? मतलब यू आर इन एन अननोन कंट्री, here your job, your income is your first support system, हाँ, and you might make new friends, you will have people you will know, but again the money in your pocket is your best friend here. एग्जैक्टली So हाँ, सिर्फ नॉट नॉट मनी भी नहीं है, मतलब हाँ हाँ, मनी भी है, लेकिन हर चीज़ मनी नहीं है, लेकिन यू विल हैव दैट। जैसे बहुत सारे लोग, मैं मिला हूँ लोगों से जो शुरू में आके आईटी करके आए फॉर एग्जांपल, या फिर अकाउंटिंग करके आए, दोनों ही मेरे जानने में हैं, जो अपना टाइम शुरू में बहुत अलग चीज़ों में बिता दिया, 4-5 साल 6 साल लगा दिए उन चीज़ों में कि हाँ मेरे को पीआर हो जाए, पीआर हो जाए, पीआर हो जाए। जब वो उनका पीआर हो गया, तब वो सोचते हैं यार मैं तो ये कर रहा हूँ ना, हाँ तो मैं आई वांट टू गो बैक देयर, हाँ दैट्स इम्पॉसिबल। so you need to stick to what is in demand right now, what your skill is, हम्म। and then just keep your focus there. हाँ, अपना अपना पहले यहाँ पे देख लो, या हाँ क्योंकि न्यूजीलैंड एक छोटी कंट्री है, यहाँ हाँ पे हर चीज़ की डिमांड नहीं है। हाँ ढूंढो कि तुम किस लाइन में हो, कहाँ फिट हो सकते हो। हाँ, उसके जॉब्स हैं कि नहीं है। हाँ seek.com है, लिंक्डइन है, ट्रेडमी तो आजकल उतना नहीं चलता है ट्रेडमी जॉब्स, हाँ लेकिन ट्रेडमी जॉब्स है, सीक है, लिंक्डइन है। आजकल 50 तरीके हैं, तुम लोगों से पूछ सकते हो, फोरम्स ज्वाइन कर सकते हो, ये देखो कि तुम्हारा जो स्किल है उसमें रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो 50 दूसरी कंट्री है, वहाँ जाने की कोशिश करो, हाँ तो अपने स्किल में ही रहो। हाँ बिकॉज जैसे पुराने जमाने में होता था ना, जो जैसे 4 वर्ण होते हैं कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, वो अपने काम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर भी प्रेटी मच सेम ही है कि जो आपका स्किल है एंड उस पे अगर आप फोकस करोगे तो वो हाँ, तो वो खैर कास्ट वाला तो नहीं नहीं, ये तो मैं कास्ट पे नहीं जा रहा हूँ, मैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाँ, अगर वर्क तुम में जा रहा हूँ। अकाउंटिंग कर रहे हो फॉर एग्जांपल, या हाँ लॉ कर रहे हो, या जो चीज़ कर रहे हो, अगर यहाँ पे लॉ तुम्हारा नहीं भी है, हाँ तुम करो दूसरा काम, लेकिन तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए कि मेरे को साइड बाय साइड मेरे को इवेंचुअली वहाँ जाना है। हाँ कीप मतलब प्लानिंग फॉर दैट कि वहाँ पे वापस प्लानिंग आना है। में सबसे ज्यादा है कि आप लॉ के, जैसे लॉ की मैं बात करूँ, जो नए नए केसेस आ रहे हैं
उनको पढ़ो, हाँ। क्योंकि you never know कि कल को you sit in an interview and they ask you about a famous हाँ। case which is going on, and if you don't have the knowledge about that case, so they will obviously say that you are not updated, what's happening on this case, what arguments were there, what facts were presented. If you are updated on those kind of things, then Yeah. definitely you will have upper hand from the rest of the people who हाँ। are in the जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, मान लो इंडिया में तुम अकाउंटेंसी कर रहे हो, हाँ, ठीक है, अकाउंटिंग में कोई कोई भी काम कर रहे हाँ, हो, सॉरी पढ़ाई कर रहे हो हाँ, और उसमें जॉब भी कर रहे हो, हाँ, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि उस सेम स्ट्रीम में तुम यहाँ पे नहीं आ सकते हो बिकॉज ऑफ वीज़ा हाँ, रीजंस या हाँ, जो भी हाँ, चीज़ हाँ, होता है, ये चीज़ कि हाँ हाँ, मेरे को इस चीज़ पे मैं जाऊँगा तो वहाँ पे वीज़ा नहीं मिल रहा, मेरे को हाँ, पढ़ाई की कुछ और करनी पड़ती है, करेक्ट, तुम कर लो वीज़ा ले लो, लेकिन तुमको पता है कि मैं इतना टाइम वहाँ पे स्पेंड कर रहा हूँ और अकाउंटेंसी मेरे को करना है, तो हाँ, पैरेलली अगर कोशिश करो यहाँ पे कीप लुकिंग फॉर दैट जॉब हाँ, कि हाँ बुक मेरे को कीपिंग एक्सपीरियंस है है, और ये सब छोटा-छोटा ऐसा, हाँ अकाउंट्स के एक्सपीरियंस ज्वाइन काम करो। कर सकते हो। और दूसरी बड़ी चीज़ बिफोर वी फिनिश, आई फॉरगॉट टू से दिस, इंडिया में जो पढ़ाई कर रहे हो सिर्फ पढ़ाई करके सीधे यहाँ मत आओ, थोड़ा सा गेट सम एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस, लो, या अपने काम को सीखो और हाँ, तब यहाँ पे आओ, दैट विल रियली हेल्प। perfect, perfect. So I guess we have covered a lot of things, and these people will get a lot of insights. And thank you for spending so much time. And it's like 10:30 at night right now while we are shooting. So you had a long day. You finished your work and did all the other chores which you need to do, and Yeah. then you are spending time to guide the students who will be watching this. So I'm really thankful to you, and from my side, that I've always considered you as my big brother. So thank you for doing this. I Thank really you. appreciate that, and Pleasure. thank you. You want to say anything to them? Yeah. No, No, all good. I've already talked a Said too lot, much. Yeah. said so much, Yeah. so yeah. Thank you, Thank and you. we'll see you soon.